school, the smart school, ये मेरा school है. Okay, students, let's move toward exercise comprehension. Answer the following questions. Our first question is, what position does Philip Sederbai hope to get? Philip Sederbai कौन सी पोजीशन हासिल करना चाहता है, ठीक है ना? For the answer of this question, students, you have to move toward the notes which you have collected from the school. The answer of first question is, Philip Sederbai hopes to become the member of parliament for the county of Chokshire. He wants to become the member of parliament, ठीक है, for the county of Chokshire, ठीक है. Our second question is, who is Philip Sederbai on his way to visit and why? Philip Sederbai किससे मिलने जा रहा है and why, और क्यों मिलने जा रहा है, ठीक है. The answer of this question is, Philip Sederbai is on his way to visit Mrs. Saltpen Jago because if she approves of him, he will she will support his ambition to become the member of Chokshire. अगर वो उसको अप्रूव कर देती है तो वो उसको मेंबर ऑफ चौकशायर बनने के लिए सपोर्ट भी करेगी, उसको फेवर करेगी, ठीक है ना. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़, how does Bertie know that Philip Sederbai is going to visit Bertie's mother? बर्टी को कैसे पता चला कि फिलिप सेदरबाई उसकी मदर से मिलने जा रहा है, ठीक है ना. Bertie knows that Philip Sederbai is going to visit Bertie's mother because he hears Sederbai's club acquaintance saying that through the train window. ठीक है, उसको इस तरह पता चला कि उसने उसकी और क्लब कंपेनियन की, क्लब एक्वेंटेंस की डिस्कशन जो है विंडो की ट्रेन की विंडो के थ्रू सुन ली थी. वेयर इज़ बर्टी गोइंग? बर्टी कहाँ जा रहा है, ठीक है ना. बर्टी इज़ गोइंग फ्रॉम लंडन टू द कंट्री साइड टू गो फिशिंग फॉर द वीकेंड, ठीक है. आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज़, व्हाट आर 6 आइटम्स बर्टी हैज़ इन हिज पॉकेट्स? वो कौन सी 6 चीज़ें हैं जो बर्टी की पॉकेट्स में हैं, ठीक है ना. ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. एंड फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन we shall move towards notes. The items Bertie has in his pockets are a 6-penny coin, a cigarette case, a matchbox, a key, a silver pencil case and a railway ticket, ठीक है. And our next question is, what has Bertie forgotten and what does he want Philip Slatherby to do? वो what has Bertie forgotten, वो क्या भूल गया है, और what does he want Philip Slatherby to do, और वो क्या चाहता है कि Philip Slatherby उसके लिए करे, ठीक है ना. Bertie has forgotten his coin, purse और money, ठीक है. He wants Philip Slatherby to lend him some money, ठीक है. वो अपना पर्स भूल गया और वो चाहता है कि फिलिप सैदरबाई उसको कुछ पैसे दे. Our last question, students, our last question is, what are the 2 reasons why Philip Slatherby does not help Bertie? कौन सी 2 रीज़न हैं, रीज़न्स हैं क्यों फिलिप सैदरबाई जो है वो बर्टी की हेल्प नहीं करता. The answer of the last question is, Philip Slatherby does not help Bertie because his description about the crest and her mother's hair color was not right. This is our last question. Let's move toward the next page. Here is an activity which you can see. If you go through the working with words from page 11, students, from page 11 you can see this activity, working with words. If you go through the passage carefully, you will find all the adverbs started but not completed below. Find them in the passage and notice the way in which they are used. Which verbs do they describe? When you have completed the words given below, use them in sentences of your own. स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस और भी बहुत हैं इस लेसन एक्सरसाइज में. हम जस्ट इन एडवर्ब्स को कंप्लीट करेंगे. सीडेट से सीडेटली, नॉइस नॉइजली, फ्यूरियस फ्यूरी फ्यूरियसली, प्रॉम्प्टली, केयर केयरलेसली, स्कार्सली, wrongfully, ineffectively, hastily, rightly, presently, severely, ठीक है. I also have given these adverbs on notes as well,
ठीक है, you can say sedately, noisily, furiously, promptly, carelessly, scarcely, and wrongfully, ineffectively, hastily, rightly, presently, and severely. After this, I shall move toward the next activity of this page. Copy the following sentence. He was searching furiously and ineffectually for some elusive and non existent object. From time to time, he dug a sixpenny coin out of a waistcoat pocket and stared at it ruefully. ठीक है? Then recommenced the futile searching operation. Saki's vocabulary builds a very detailed image on the young man's moments and character. Let's move toward the next paragraph, students. Here you can see underline the four verbs in the sentence. The first one is verb phrase has been done for you. Okay, students, you can see that I have highlighted the four verbs here. Dug, stared, recommenced, and builds. Let's move toward the next activity. Students, here you can see our next activity. The story contains many words to do with the king. Here is a list of these words and a couple that do not appear in the story. ठीक है? Use them in sentences of your own. Students, you also can see the sentences of these words on your notes. Our first word is scrutinized. Our second word is espied. After that, let's move toward the notes, students. Yes, our first word is scrutinized. I scrutinized the newspaper. ठीक है? Second word, picked out. I picked out a notebook from the pack. Searched mean तलाश करना. ठीक है? I searched a good speech for 23rd March. Spotted ढूंढना. ठीक है? या बता देना, यानी कि वो चीज़ वहाँ पड़ी है. My teacher spotted mistake from my work. Fixed eyes on. The teacher fixed eyes on me in the test. टेस्ट में टीचर ने यानी मुझ पे ही नज़र रखी हुई थी. ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास ग्लैंस्ड. आई ग्लैंस्ड एट द फ्लावर्स. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ग्लैंस्ड मीन होता है एक झलक देखना. ठीक है? ऑब्जर्व्ड. अली ऑब्जर्व्ड द जर्म्स थ्रू माइक्रोस्कोप. स्टेयर्ड मीन होता है घूरना. माई फादर स्टेयर्ड एट मी एंग्रीली. मेरे बाबा ने घूर के मेरी तरफ देखा. लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एक्टिविटी, स्टूडेंट्स. Our next activity is look at the first paragraph of the story. Find words and phrases that describe Flip's otherwise feelings of contentment. First हमारे पास word है pleasant, second है feeling, third agreeable, fourth gratified, fifth delighted. Next, students, let's move toward the next activity. Use a thesaurus to find more words that mean the same एज प्लीज्ड. ठीक है? आपने थिसोरस को यूज़ करते हुए प्लीज्ड के सिनोनिम्स को फाइंड आउट करना है. स्लैंग एंड क्लोकियलिज्म क्या होता है? लेट्स मूव टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ स्लैंग. स्लैंग इज़ द यूज़ ऑफ इनफॉर्मल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस. इनफॉर्मल वर्ड्स और एक्सप्रेशंस को यूज़ करना स्लैंग कहलाता है. ठीक है? दीज आर नॉट कंसिडर्ड स्टैंडर्ड इन द लैंग्वेज, यानी वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं होती. ठीक है? स्लैंग इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद अनरिफाइंड स्पीच एंड बिहेवियर एंड देयरफॉर कंसिडर्ड वल्गर. ठीक है? सच वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड इन फॉर्मल राइटिंग. इन वर्ड्स को हमें फॉर्मल राइटिंग में यूज़ नहीं करना चाहिए. एज यू कैन सी द वर्ड क्विड हाईलाइटेड हियर. ठीक है? ही इज़ यूजिंग स्लैंग. what slang do you use when talking to your friends? ठीक है? स्लैंग लैंग्वेज वो होती है जो आप उस वक्त यूज़ करते हो जब अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हो. फॉर एग्जांपल, जैसे हम उर्दू में कहते हैं पानी शानी, रोटी शोटी. ठीक है ना? रोटी वोटी का वर्ड आप लोगों ने अक्सर देखा होगा उर्दू ग्रामर की बुक में यूज़ होते हुए. ठीक है ना? इन दिस वे द स्लैंग you can learn the definition of slang and slang. Slang is the use of informal words and expression. It is considered
इट इज़ नॉट कंसिडर्ड स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है. इट इज़ अनरिफाइंड स्पीच एंड बिहेवियर विच इज़ कंसिडर्ड वल्गर, ठीक है. लेट्स मूव टूवर्ड colloquialism. Colloquialism are expressions in which certain words are used in a way that does not correspond to their real meaning. यानी वर्ड्स को उनके रियल मीनिंग में यूज़ ना करना, ठीक है, किसी और वे में जाके उनको यूज़ करना, ठीक है, उसे colloquialism कहते हैं. जैसे हमारे पास है इट इज़ एन ऑफली लकी कोइंसिडेंस, ठीक है. ऑफली का मीनिंग होता है खौफनाक, ख़तरनाक, ठीक है ना. तो यहाँ पर ये टू मच लकी इंसिडेंस के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है विच इज़ क्वाइट डिफरेंट इन इट्स मीनिंग, ठीक है स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट वी हैव टू मूव टूवर्ड्स एलिप्सिस ऑन पेज नंबर 13. What is ellipsis? Ellipsis क्या होता है? Omission of the part of sentence. सेंटेंस के कुछ पार्ट को स्किप कर देना, ठीक है. स्टडी दिस सेंटेंस. इट्स spotted, इट्स slid, it went down almost to the bottom, ठीक है. In English we often leave out words, especially in conversation, when the meaning is understood from the context. जब कॉन्टेक्स्ट से, पीछे लाइन से, पिछले सेंटेंस से हमारा मीनिंग क्लियर हो रहा होता हो, और फ्रॉम जनरल नॉलेज या फिर जनरल नॉलेज से हमारा मीनिंग क्लियर होता हो, तो हम बाकी लाइन या बाकी सेंटेंस छोड़ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बेबी वॉज ड्रिंकिंग मिल्क द मदर टी. मीन टू से द बेबी वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, बच्चा दूध पर पी रहा था, एंड द मदर टी, मम्मा यानी उसकी मम्मा जो है वो चाय पी रही थी. और हमें प्रीवियस सेंटेंस से ये समझ आ चुकी है कि वो भी कुछ पी रहा है और उसकी मदर भी कुछ पी रही है. द बेबी वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, द मदर वॉज ड्रिंकिंग टी, तो हमने वॉज ड्रिंकिंग को स्किप कर दिया. इट इज़ कॉल्ड एलिप्सिस स्टूडेंट्स, इसे एलिप्सिस बोलते हैं, ठीक है. लेट्स मूव. फाइंड द मिस्टेक इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट दैम. आपने यहाँ पे मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है और उनको करेक्ट करना है. आई एम गोइंग टू द मार्केट बट मिमी नॉट, ठीक है. आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, ठीक है, लेकिन मिमी के लिए आपने सेकंड सेंटेंस को यूज़ ही नहीं किया. आपने बट की जो है वो बट को यूज़ कर दिया, ठीक है, लेकिन उसके नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस में कोई टेंस यूज़ नहीं किया, ना प्रेजेंट का ना पास्ट का, कुछ नहीं बताया, ठीक है. तो ये क्या है? तो यहाँ पर जो स्किप है, इनकरेक्ट थिंग है, मिस्टेक है, और ये है मिमी इज़ नॉट आना चाहिए था, ठीक है. यू आर वर्किंग हार्ड बट नॉट योर फ्रेंड. बट फिर आपने यूज़ कर दिया, उसके बाद आपने सेकंड सेंटेंस को यूज़ नहीं किया. सेकंड सेंटेंस में कोई भी टेंस यूज़ नहीं किया, आपने फर्स्ट यूज़ कर दिया यू आर वर्किंग, ठीक है. बट योर फ्रेंड इज़ नॉट वर्किंग आना था, या फिर योर फ्रेंड इज़ नॉट, ठीक है. फर्स्ट जस्ट अकेला नोट नहीं आना था. सारा इज़ लिविंग रोस्ट चिकन, सारा इज़ हैविंग रोस्ट चिकन बट द अदर्स वेजिटेबल करी, ठीक है. बट द बट फिर यूज़ कर दिया आपने, ठीक है, लेकिन उसके साथ आपने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया, यानी कोई टेंस यूज़ करके शो नहीं किया. सारा इज़ डूइंग समथिंग और शी हैज़ डन, उसका कुछ कर रही है या उसने कर लिया. यहाँ पर आना चाहिए था बट द अदर्स आर हैविंग वेजिटेबल करी, ठीक है. आर फोर्थ स्टेटमेंट इज़ ड्राइंग एंड राइटिंग आर गुड स्किल्स टू लर्न बट स्क्रॉलिंग नॉट सो गुड. बट फिर आपने यूज़ कर दिया बट स्क्रॉलिंग इज़ नॉट सो गुड है, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है मुल्तान हैज़ बीन मार्क्ड एज अ मैप बट रावलपिंडी, कराची एंड एबटाबाद लेफ्ट, ठीक है. मुल्तान हैज़ बीन मार्क्ड ऑन द मैप, मुल्तान को हमारे पाकिस्तान के मैप पे जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया गया, ठीक है, लेकिन रावलपिंडी, कराची एंड एबटाबाद लेफ्ट ऑफ, यहाँ पर आना चाहिए था हैव बीन लेफ्ट ऑफ. दीज आर सेंटेंसेस स्टूडेंट्स. फाइंड 3 एग्जाम्पल ऑफ एलिप्सिस इन द स्टोरी. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर बट की कंजक्शन यूज़ हुई है. स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड दैट आफ्टर कंजक्शन द नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट्स. कंजक्शन के बाद नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है. एंड व्हेन द नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट्स, सो वी हैव टू यूज़ द टेंस एंड द हेल्पिंग वर्ब here as well. But here is a helping verb and helping verbs
to represent that tense are missing. ठीक है, helping verbs are missing, so we put the helping verbs here. Our exercise is over and I hope you all will learn it very well, inshallah taala.